So we are standing outside the southernmost pub of the Australian mainland continent. Its name is Great Ocean Road Brew House. And look what it's written here. Husband Day Care Center. जो हस्बैंड बिहेव नहीं करते उनको इस डे केयर के अंदर डाल दिया जाता है और उनको यहाँ पे क्या मिलता है बिहेवियर पैटर्न लर्न करने के लिए वेरी नाइस ब्रू राइट एंड देन दे बिकम गुड हस्बैंड दिस इज आपको ये समझना है कि जब आपका हस्बैंड बिहेव ना करे तो उसको आपको क्या देना है जस्ट लीव योर हस्बैंड विद अस वी विल लुक आफ्टर हिम तो इतना दूर ऑस्ट्रेलिया आना पड़ेगा और उसके लिए फिर पैसे लगेंगे फिर हस्बैंड जाके घर में पिटेगा और सीधा हो जाएगा बिल्कुल सही वेरी गुड नाइस वन nice shops, small little things, totally a beach town. Here you see a lot of people come here to do surfing, Apollo Bay, और यहाँ पे बहुत सारी property is up for sale. हवा में एक अच्छा चिल का माहौल है. सड़क क्रॉस करने से पहले दाएं और बाएं दोनों तरफ देखना है फिर क्रॉस करनी है सड़क. पर ये एक अच्छी चीज़ लगी कि समय के साथ रेस्टोरेंट्स बंद गिव्स अ गुड ब्रेक. कितना भी लोग आ जाएं कुछ भी हो जाए वो नहीं लेंगे. सो अ डिसीजन बीइंग मेड कि क्या करना है कहाँ जाना है क्या खाना है. लेट्स सी लेट्स होप. Folks, some great music going in the background. I don't know YouTube will allow this or not, but yes, great time. And here is a bottled Coke with a glass bottle, and I think the big boy is here and he's going to sing. Welcome back. My name is G-Man. Welcome to set number 3. Let's start off with this song called Black and Gold. Yes, next to the Great Ocean Road. This is a beautiful road which is running next to the Great Ocean, and I am told that there are 2 such roads, one in Australia and the other one somewhere in North America. The weather is perfect, overcast sky, very mild sun, 17 degrees outside, and we are driving next to the sea. तो ये जो ग्रेट ओशन रोड है ये एक पॉइंट के बाद आके बहुत बोरिंग हो जाती है क्योंकि इस पे सिर्फ राइट और लेफ्ट
राइट और लेफ्ट कर्व, सामने से इक्की दुक्की गाड़ी आती है, बगल में कोई रुकने के लिए कोई जगह नहीं है, आप रुक नहीं सकते। तो थोड़ी देर के बाद जो ड्राइवर है उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है जागने के लिए, वरना वो मैकेनिकली गाड़ी को चलाता रहता है लेफ्ट राइट करके। So yes, that's the funny part, because otherwise on the left side the mountain continues, on the right side you just do not miss out, it's sea all throughout, it's sea. तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं लोन, LORNE, लोन सिटी, छोटा सा हैमलेट जो कि अब एक छोटे से शहर में कन्वर्ट हो चुका है। इजी, लेड बैक, टिपिकल ऑस्ट्रेलियन। ये है एयरबीएनबी जहाँ पे हम रुकेंगे, और अब हम जा रहे हैं चाबी की खोज में। चलिए नहीं, मलिका मलिका, टेल कहाँ पे है चाबी? So, I'm reading the instructions. या At the front of the house on your left, you will see a white gate that leads to a walk down the side of the house. Go through the gate on your right near the bedroom window. You will see a large clay pot. ओके, Keys will be beside that pot under a brick paver in a plastic container. मिल गई। बॉय, दिस इज वेयर द चाबी इज। And you have to leave the चाबी the same place. ओके, ये मिल गई चाबी। तो आइए दिखाते हैं आपको आज हम जिस एयरबीएनबी में रुक रहे हैं। ये है कमरा नंबर 1, वेरी वेल लेड आउट। ये है कमरा नंबर 2, अगेन क्वाइट वेल लेड आउट। और यहाँ पे हम आए कॉमन एरिया में। ओके, ये है यहाँ पे एक कॉमन टॉयलेट, एक लिविंग रूम, देयर इज अ फुल kitchen which is operational, and this is where you find a CD player, GVA. Let's see, we'll make ourselves comfortable and then we will create some more videos. Okay, so let me go down the drain. Yeah. Be very good and careful. Oh, there is a bunk bed system here for the kids. for the kids. You can see two wonderful bunk beds, and there is a bedroom here, but there are no curtains. Oh, no, There's a blind. There's a blind. This is connected. Okay, and here is One washroom. a washroom. And like Aparna always tells me that in Australia, the washrooms are laid out separately from the bathing area. This is a sit out again. And here also I can see No, something. that's a door, I think, which opens outside. Oh, this is a door which is opening into a Garage, kind of a garage. garage where I think they can store certain things. Lock it up. Oh, that's a very hard wind outside. बहुत तेज. हवा तेज चल रही है आज। Beautiful Workstation. workstation. So आप work from home करना चाहो तो वहाँ पे एक Dyson, उसके सारे appliances, some wonderful books to read. Beach is just 3 minutes away from here. Beach is just 3 minutes. That's 3-minute walk. We just saw something. ऐसे push करके right. जाते हैं. बहुत सारे Irish चीजें हैं. Maybe it belongs to an Irish person. And if you see, There's a fan which is very rare in Australia. चलें, shall we go up? Yeah. And coffee corner. Wow. It's a deck kind of a thing. How do you feel, lady?
I mean, I'm feeling top of the world. Ah. It's so beautiful, no? Very nice. It's so breezy outside. I hope we don't get blown away. We have checked into a place called Torquay in a Airbnb, and this is the view from here. Now we can see a full rainbow जो आपको भी दिख रहा होगा अपने स्क्रीन पे, और ये बिल्कुल अभी अभी बना है. What a great sight. Wow. There you see the full rainbow. Look at the hue. Place Torquay near Melbourne, just next to the Southern Ocean. So हम हैं तुर्की में. What is the name of this place? Torquay. So we are in Torquay, and as we told you, अभी हम पहुंच गए अपने Airbnb में. यहाँ पे किचन में 6 आदमी लगे हुए हैं और अब सब बोल रहे हैं कि हमारे को भी लगना पड़ेगा. और the best cook is here. He is supervising all the operations. And Hands in a pocket. हाँ, with hands in his pocket. And otherwise he has said कि कल सुबह मैं रिपोर्ट सिक कर रहा हूँ, बाकी सब योगा करेंगे. और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि कुछ बहुत ही दवाई पड़ी है ठंडी के टेस्टी लिए. खाना वो है. और दवाई तो चलो वो है सो है, बढ़िया दवाई है, लेकिन मिलेगी ये तब जब बन जाएगा खाना. अब खाना जो है वो आप दोनों को खाना जो है वो बनाना एक बहुत बड़ा आर्ट है. और वो आर्ट एटलीस्ट मुझे लगता है कि गुरुजी को तो आता है, लेकिन मुझे तो बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि मैं पिछली बार नींबू काटते हुए अपना हाथ काट बैठा था, अगर आपको दिख रहा हो तो. और वो हाथ कटने की वजह से फिर मेरे पासपोर्ट की लकीरें बड़ी होती गई और मैंने दुनिया घूमना शुरू किया. तो कितनी भी डांट पड़ जाए, खाना मैं नहीं बना सकता, लेकिन अगर खाना ना बने तो मैं खाए भी ना सो ज़रूर सकता हूँ. तो उसमें कोई चैलेंज नहीं है. और यहाँ पे आए तो हमारे को एक हैट मिला, लेकिन किसी और का हैट पहनने से इसकी टोपी उसके सर, लेकिन उसके नीचे मैंने अपना एक बंडाना लगा लिया, जिससे कि सिर के बाल जो है वो एकदम फिट रहे. तो अभी क्या खाना बनेगा ये आपको हम दिखाएंगे. और काफ़ी जो है मेहनत चल रही है. यहाँ पे मुझे ब्रोकोली दिख रही है, गाजर दिख रही है, बन रही है stir fried vegetable और and what are we making? Grilled chicken ग्रिल चिकन. वाह. and stir fried vegetable with chicken and garlic bread. And spicy और noodles. जो बच्चे समय से रहते हुए विदेश में आ जाते हैं और अपना काम खुद करना शुरू कर देते हैं, उनको खाना बनाना आ जाता है. और हमारे जैसे बच्चे जो भारतवर्ष में माँ के प्यार में पले, हमारे को खाना नहीं बनाना आता. तो चलिए हम इनके लिए एक अच्छा सा वीडियो क्रिएट कर देते हैं. और एम्पायरिंग का काम पुनीत को करना है, तो अब आप एम्पायरिंग के लिए तैयार हो जाओ. और यहाँ के आप देखिए शानदार In fact, we can बड़े साइज़ के प्याज, और मतलब हर चीज़ जो है देखा जाए तो काफ़ी वेरी वेल लेड आउट. और यहाँ जो ये घर है, इसके अंदर सारी चीज़ें बड़ी वेल लेड आउट है. एक तरीके से मेरे को ये बिग बॉस का घर भी लग रहा है. मैंने कोशिश करी कि मैं एक वीडियो को एडिट कर दूं और रेडी कर दूं उसको. सिर्फ 15 मिनट का काम था, नहीं लेकिन बिग बॉस के घर में जब तक आप खाने की टेबल पे नहीं होते तो आपको खाना नहीं मिलता. काम नहीं करोगे खाना नहीं जब तक काम नहीं करोगे तब तक खाना नहीं मिलेगा. तो अब बिग बॉस का ऑर्डर है तो खाने के वहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा. और वीडियो का काम एडिटिंग का कल करेंगे, कोई जल्दी नहीं. आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, आपने देखा हो, तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें. और हमारे चैनल में हमारे साथ बने रहें. ऐसे ही हम आपको अपने ट्रैवलॉग्स के सहारे दुनिया में जहाँ जहाँ पे भी हम जा सकते हैं ज़रूर आपको घुमाएंगे. तो देखिए थोड़ी देर में जुड़ते हैं आपके साथ कि खाना क्या बना, आपको दिखाते हैं. One dish is ready. Easy to go, good to eat.
morning. Welcome back to the channel. Today is 23rd of December 2024. We checked into this wonderful property courtesy Pari and Akshay. Had a great time. Used the old stereo system which is still working. And this is the wonderful book on which we have left our impression for people who come after us to have a look. This property is in a place called Torquay Beach, and a wonderful homestay. Now let's see what is brewing up in the kitchen. So here we are. We can only do a video. We cannot do all this, right? But we can do the dishes probably after that. That too if they allow us. Let me give you a glimpse of what I am seeing today morning from this wonderful property. सामने आप देख सकते हैं कि सदर्न ओशन, और आज सुबह जो आसमान है उसमें हल्के बादल. सुबह 6 बजे जब मैं उठा तो सूरज जो है वो बाहर आने की कोशिश कर रहे थे और बादलों में ढके हुए थे. अगल बगल में आप देखिए ये सब हॉलीडे होम्स हैं लोगों के. कितना वंडरफुल, बहुत ही सुंदर गार्डन. और ये जितने ये घर हैं एक तरीके से ये एक बोर्ड टाइप ऑफ मटेरियल से बने हुए. इस घर पे काफ़ी बोट्स के निशान है, तो मुझे लगता है कि शायद ओनर जो है वो उनको नाव से, किश्ती से, या हो सकता है कि वो भी ऑस्ट्रेलियन नेवी के हों. एनीवे, वी हैव लेफ्ट आवर मार्क हियर एंड वंडरफुल टू कम हियर. बहुत ही अच्छी ड्राइव थी कल की, और अभी हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं आज वापस. विल हिट मेलबर्न, अबाउट 2 hours drive from here. So stay with us, keep looking at the channel, keep sharing it, keep liking it, and if you love this video, do subscribe it. So this is the exact journey that we did yesterday. We started somewhere from Melbourne, crossed Colac, came like this, came to a place called Johanna, saw the 12 apostles here, and then we took the Great Ocean Road which is running next to the sea. We came to Apollo Bay, we crossed Kennet River, Wye River, came to a place called Lorne which is famous for the surfing, and then crossed this gate, Great Ocean Road, and we just kind of narrowly missed this lighthouse. It was visible but we did not go. And from here we came to this place, Torquay. This is again Australian National Surfing Museum which is here. So this is the beautiful circuit called the Great Ocean Road, and it was really good to do this. All right, cruising back towards Melbourne, and we are on the expressway. जो यहाँ का expressway है उसके ऊपर है हम, freeway expressway, और गाड़ी की स्पीड ऑटो में 97-100 के बीच में क्रूज मोड में गाड़ी चल रही है पिछले करीब 50 मिनट से. और इस तरह की ड्राइविंग को करना जो है वो बड़ा ही एक अनोखा एक्सपीरियंस है, खासकर हमारे जैसे ड्राइवर्स के लिए जो इंडिया में भी अच्छे ड्राइवरों में गिने जाते हैं. लेकिन इंडिया की ड्राइविंग से यहाँ की ड्राइविंग में मतलब अगर आप एक्सप्रेस वे पे या फ्री वे पे हैं और क्रूज़ मोड में जा रहे हैं तो आपको नींद का झटका भी आ सकता है. इतनी स्मूथ ड्राइविंग है. 97 पे लग ही नहीं रहा कि गाड़ी 97 की स्पीड से चल रही है. तो ये अगर आप कभी यहाँ पे ड्राइविंग करें आके तो आपको बहुत ध्यान रखना है, लेन मेंटेन करनी है और डरना नहीं है. लेफ़्ट राइट की कोई गाड़ी आपके पास नहीं आएगी. लेकिन फिर भी क्योंकि हम इंडिया से हैं तो हमारे को थोड़ा सा लगता है कि पता नहीं कि ये पीछे से आ रहा है, कर क्या दे. बड़े बड़े ट्रक आ रहे हैं, बड़ी बड़ी ऊंची गाड़ियाँ आ रही हैं. लेकिन मज़ा आ गया आज. ये करीब हमने 135 किलोमीटर कवर किए हैं 1.5 घंटे के अंदर.